अटैच ना रहा हो। आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में। है कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, यानी कि सब स्टूडेंट हॉस्पिटल में गए हैं? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हैं, अभी कहीं भी जॉब करते हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? एम आई नॉट ऑडिबल? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करते हैं? कैन यू मेंशन इन दी चैट बॉक्स कि यस आई एम डूइंग जॉब? 6th semester student, be participative. We are recording what you are doing, what you are answering. So this is required that you must answer my questions. कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जॉब नहीं करता, जॉब करता है। अमंग मेनी ऑफ यू, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो जॉब नहीं करता। अगर इतने सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं, जॉब नहीं करते, so then why the attendance is very low of your classes? Why you are not opening your camera? अगर आप कहीं जॉब की जगह पे नहीं है, कहीं इंटर्नशिप में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, अपने सेंटर पे हैं या अपने घर पर हैं, तो आपको कैमरा खोलने में क्या दिक्कत है? May I ask you the reason why you are not opening your camera? None of the students, are they not allowed to open the camera? Allowed है ना? Please open your camera, otherwise we are cancelling this class. You are not obeying what I am saying. Open your camera fast. Yeah, otherwise your attendance will not be marked and we are just close this meeting immediately. You have to switch on your camera. This is interactive session. I'm giving you 2 minutes to open your camera. Everyone switch on your camera. दिक्कत है, I'm not able to बंद करिए कैमरा को, बंद करिए। मेरी मम्मी ने दिक्कत है इसमें, I'm not able to see my face। क्या पता मुझे बच्चों का भी ना दिख रहा है। इसमें बच्चों का दिख रहा है, हाँ इसमें बच्चों का भी दिख रहा है, क्योंकि एक का अब दिखाएगा। बस उनको तो ज्यादा भी दिख रहा है। And on which topic you are making the project? Is everyone filled that form? क्या सब लोगों ने वो फॉर्म भरा है? अगर आपने नहीं भरा तो अभी आपके स्क्रीन पे चैट बॉक्स में उस फॉर्म का लिंक दिखाई देगा आपको। आप अभी मीटिंग में ऑनलाइन
जिन्होंने नहीं भरा है वो अभी उसको खोलिए, उसमें कुछ ही एंट्रीज हैं और उन एंट्रीज को फिल कीजिए. आई मीन इंग्लिश ऑल्सो, please fill the Google form those who have not filled yet. Okay, and it is compulsory to filled. You also need to mention that where are you doing job or internship or what you are doing and where you are doing. First of all, complete this Google form and then we will talk on the next topic, that what to do to get good marks in the project, what not to do, what should be ignored for फॉर बिकमिंग फेल इन दी प्रोजेक्ट. ओके, आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि आप जिन वजह से आप फेल होते हो, और क्या आपको करना है, द रीजंस हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. ओके ओके, those who have already filled, no need to send it again. Okay, or those who have not filled the form, I'm just giving you 2 minutes, just fill this form very fast and then we will come back to the meeting again. Upload the form, but yes, if you are doing job, we have already asked you that if you are doing job, then upload your job certificate. This will help you to score good marks. अगर आप कहीं जॉब करते हैं, चाहे फुल टाइम चाहे पार्ट टाइम, और अगर वो आप गूगल फॉर्म के साथ अपलोड का ऑप्शन दिया है हमने, अगर आप अपलोड करते हैं आपका जॉब फॉर्म कि आप जॉब करते हैं इधर पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी, तो आपके मार्क्स में वो आपको हेल्प करेगा. ओके, अगर आप फॉर्म अपलोड करते हैं तो. अगर इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कैमरा इज इनेबल, प्लीज चेक योर डिवाइस. प्रिया सिंह, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर पॉइंट. मैम, currently I'm doing internship, I am not at that in my. Okay, no issue. Internship is not required to add, just to enter that where you are doing your internship. आप कहाँ अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, बस आपको उतना ही लिखना है in that Google form. But if you are doing job, then you have to fill any proof of doing job. You can upload salary certificate also, your I-card also, your offer letter also, appointment letter also, experience certificate also, anything which proves that you are doing job. Okay, if you are not doing job, you are doing a kind of internship, then just enter that where you are doing the job. ठीक है, ये वाला जो ये those who scored very good marks in the past years in the project. And I will also see your Excel and I will answer some of the point that this title is okay and this is not okay. Can I see that Excel? नहीं, वो वाली वो तो तुम शेयर करो अपनी, अब तुम बोलो. अच्छा, okay, you have shared the screen. See, have you seen my screen? Are you able to see my screen? Are you able to see my screen? आपको screen दिख रहा है? आपको screen दिख रहा है? Please no, type in the chat box. Okay, see, these type of titles are acceptable. Like study, you study on side effect. Can you just read out? Okay, so the first title that we can see on the screen, study on side effects caused due to milk adulteration, which is done in Mumbai. The student has scored 72 marks, which is very good marks for their projects. Why they have scored these kind of marks? Because of the project title and the way that they have made the project. According to the project guidelines, everything was matching. All right, I will also show you some examples of what are the good projects
how can you achieve these kind of marks. But the first thing is that how can you choose the project title. This person is studying about the liver enzyme in alcoholic patient below 50 years in Navi Mumbai. Now, by studying the title, it is very clear to you that what is the project, what is the age group that the person has taken, कहाँ किया है उसने स्टडी, ये भी आपको पता चल रहा है देखने से, राइट. तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ऑल राइट. जिससे कि आपको फ्यूचर में भी अगर आपको कुछ डिस्कशन करना हो, देखना हो, या कोई आइडियाज लेने हो कि किस टॉपिक पर बना सकते हैं हम प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट अप वी कैन ऑल्सो हैव some example titles about the radiology and medical imaging process. Case study of uterine fibroid through ultrasound in patients belonging to age group. This one belonging to the age group of 20 to 45 years old. And जानकी CT scan and radiological centers. इन प्रोजेक्ट टाइटल से आपको क्लियरली पता चल पा रहा है कि क्या स्टडी है, एज ग्रुप क्या थी, कहाँ कर रहे हैं. आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. Role of MRI brain imaging in patient between 3 to 75 years at Darbhanga Imaging and Diagnostic Solution. I will also show you some of the examples. For hospital sterilization, a study assessing the challenges faced by CSSD staff within the age group 20 to 35 years. Comparative analysis of 121 degrees Celsius and 134 degrees Celsius autoclave sterilization efficiency in CSSD department. Then we are also having some of the topics about operation theatre technology, management of patient which is undergoing in spinal and epidural anesthesia. All right. So these are some of the topics which our ma'am explain of OT, physiotherapy, MLT. Okay. Now, we have received some entries in Google form. Okay. So I'm just telling you that which kind of titles are rejected. Although we will share the list with your ITP also, but I'm just telling you some of the titles which are not acceptable in any case. For example, someone has written best OT experience. So what is best OT experience? ऐसा कोई टाइटल प्रोजेक्ट का नहीं होता. इसके अलावा अगर हम बात करें, someone has written ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक भी नॉट एक्सेप्टेबल है. ब्लड बैंक के बारे में सबको पता है, एवरीवन नो अबाउट बी ब्लड बैंक. नाउ यू हैव टू इलैबोरेट द टॉपिक. अगर आप ब्लड बैंक में काम करते हो तो उसको इलैबोरेट करना होगा. उसके बाद ऐसे बर्नआउट सिंड्रोम अमंग नर्सेस. नाउ यू हैव टू मेंशन कि आप कौन से हॉस्पिटल में किन केसेस पे स्टडी कर रहे हो. सी, माय पॉइंट इज वेरी क्लियर. आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, या जहां भी आपने इंटर्नशिप करी है, आप वहां से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. एंड फॉर एग्जांपल अदर टॉपिक्स आर क्रोनिक किडनी डिजीज. इसमें ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, टाइटल है विच इज रिजेक्टेड. किडनी स्टोन रिजेक्टेड. फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट रिजेक्टेड. एंडोक्राइन सिस्टम रिजेक्टेड.
लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड, टोटल नी रिप्लेसमेंट रिजेक्टेड, ये सब रिजेक्टेड टाइटल हैं। अब एक्सेप्टेड क्या है? जैसे स्टूडेंट ने देखो ये लिखा है स्टडी ऑन यूज ऑफ contrast material in various contrast study in CT MRI special procedure among radiographers in the age group of 25 to 55 in Santhi Hospital। यानी कि आपको पूरे टाइटल में ये मेंशन करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो कौन से हॉस्पिटल में या कौन सी इंडस्ट्री, जैसे आप लिख रहे हो फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, होटल वाले स्टूडेंट्स जो लिख रहे हैं तो फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आप अगर किसी होटल में हो तो उसकी केस स्टडी लिखनी है। वहां के एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे लिख सकते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो। फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेज हो जाता है, आप थ्योरी लिख दोगे, देन योर प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज 100% रिजेक्टेड। MRI in see, these type of titles are incomplete when you are writing MRI in breast cancer। एक बच्चे ने लिख दिया सेमेस्टर 6 प्रोजेक्ट, टाइटल में लिख दिया सेमेस्टर 6 प्रोजेक्ट, ये तो 0 नंबर आएगा इसमें, ठीक है। IVP, पब्लिक हेल्थ, CTPA, ये सब रिजेक्टेड टाइटल है। ऑल्दो हम पूरी जब एक्सेल हमारे पास रिसीव हो जाएगी आप सबकी तो हम सेंटर वाइज आपको आपके ITPs को भेजेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आप अपने यू कैन कॉन्टेक्ट योर इंडस्ट्री पार्टनर दैट वेदर योर प्रोजेक्ट टाइटल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इन दैट केस यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन, अगर आप अभी लूज कर देंगे और अभी आप ये नहीं करते हैं, हाँ आपने पूछा ना हाउ डू आई नो माई प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड और नॉट, अभी तो आपने प्रोजेक्ट भेजा ही नहीं है, अभी आपने सिर्फ टाइटल भेजा है, तो आपका टाइटल अप्रूव है या नहीं वो उसकी हम एक्सेल आपके सब जितने भी 31 मार्च तक हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी और जिनकी नहीं आ जाएंगी वो सारी रिपोर्ट हम आपके सेंटर पे भेजेंगे। आपको सेंटर से पता करना है कि whether your project title is accepted or not। if it is not accepted you have to change it and you have to resubmit your title of the project। okay फिर आपको फिर से एक हफ्ता दिया जाएगा but not now। okay apart from this you have to make the project very seriously। मैं आपको फिर बता रही हूँ कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट रियल टाइम होना चाहिए, मींस आप जो काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी हॉस्पिटल में हैं उसका नाम उस प्रोजेक्ट के टाइटल में मेंशन करेंगे। क्या इस मीटिंग में कुछ मल्टीमीडिया के भी स्टूडेंट्स हैं जो 6 सेमेस्टर में? इफ यस प्लीज नोट, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। UTI टॉपिक इज नॉट एक्सेप्टेड, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपको इसको एलैबोरेट करना पड़ेगा कि UTI के किन पेशेंट्स को किन हॉस्पिटल में कहां आप केस स्टडी कर रहे हो। सी ऑल्दो ये प्रोजेक्ट है बट ये केस स्टडी टाइप प्रोजेक्ट है जहां पर हमें, ठीक है। अब आप मुझे गूगल फॉर्म पे लिखिए, मैं यहाँ चैट बॉक्स में किसी को नहीं बताऊंगी किसी का एक्सेप्टेड है नहीं है, आपका गूगल फॉर्म भरा होना चाहिए 100%। आपके पास यहाँ पर इस मीटिंग में मल्टीमीडिया एनिमेशन वाले स्टूडेंट हैं? ठीक है, हैं। मैं अभी सर आपको बताएंगे कि मल्टीमीडिया में आपको क्या करना है। लो सर बताओ।
at the screen of the most common happening which we are facing जो आप लोग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। एक बार आप मैम स्क्रीन दिखाएंगे आपको, जो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। आप जरा ये देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए मैम। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये सबमिट किया है प्रोजेक्ट, इट्स नॉट विजिबल, कैन यू प्लीज हाँ हाँ, ये देखिए, ये किसी बच्चे ने लिखा है, पेन से लिखा है, ठीक है, ये दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल, दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। जो आप लिख रहे हैं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये हाईली अनएक्सेप्टेबल है। ये देखिए, हैंड रिटन प्रोजेक्ट है, जबरदस्त है थोड़ा सा, ठीक है, ये 0 नंबर है, रिजेक्टेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक और, नहीं, नॉट एक्सेप्टेड वाला। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में टाइटल ही नहीं लिखा, ठीक है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे ही छोड़ दिया जो हमने फॉर्मेट बना के दिया था कि अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट बीवॉक इन ओटीटी। यहाँ पूरा नाम भी नहीं लिखा और पेन से लिखा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे देखिए जो टाइटल लिखा है, जो स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट लिखा है और ये भी रिजेक्टेड है, फेल है बच्चा। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जो सर्टिफिकेट है, वहां पर दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम ऑफ द स्टूडेंट जो हमने मेंशन करा है, उसका मतलब ये है कि आपको इसको यहाँ से इरेज करके, ये सॉफ्ट कॉपी में आपके पास है डाउनलोडेबल, तो आप इसे इरेज करेंगे और यहाँ पे प्रॉपरली अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा नहीं, टाइप करेंगे, यू हैव टू टाइप इट। एंड हैज कैरीड आउट द वर्क टाइटल ओटीटी, नहीं, या एंटाइटल्ड ओटीटी, यानी टाइटल लिखना था, वो भी नहीं लिखा, ठीक है, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और उसके बाद इन्होंने टोटल नी रिप्लेसमेंट में, अब टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में थ्योरी लिख दी, ठीक है, तो दिस प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड, ओके, बच्चे को 0 नंबर मिले। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये भी हैंड रिटन है और एक ये प्रोजेक्ट है हैंड रिटन और एक नी प्लेसमेंट वाला। हाँ हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट ने सिर्फ प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस अपलोड कर दी, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई प्रोजेक्ट देख नहीं रहा है तो कुछ भी डाल दो। ये देखिए, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ नहीं लिखा, फिर देखिए हाथ से कितनी शाबी तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये सब गलत है। स्टूडेंट विल नॉट स्कोर मार्क्स, वो फेल हो जाएंगे, 0 नंबर आएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, ये देखिए, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, प्रॉपर मतलब जो लिखने का स्टाइल है, इट इज टाइप्ड, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन इफेक्ट ऑफ चिया सीड सप्लीमेंटेशन ऑन सीरम कैल्शियम लेवल इन एडल्ट एज 40-50 years submitted in the partial fulfillment of award of the degree in BVOG। स्टूडेंट का नाम सब कुछ टाइप्ड है, उसके बाद डिक्लेरेशन में जो टाइटल है वो भी टाइप्ड है, हाथ से नहीं लिखा हुआ है, इट इज नॉट हैंड रिटन, इट इज टाइप्ड, ओके, इट इज टाइप्ड, प्रॉपर सिग्नेचर है, स्टैम्प है एंड इट इज टाइप्ड। आफ्टर दैट सर्टिफिकेट में इट इज टाइप्ड, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस टाइटल दिस, ये सब उन्होंने जिस भी सुपरवाइजर की, तो दिस इज 100% approved and the child scored 80% marks in the project। आपको आ रहा है समझ में? ऐसे लिखना है सर्टिफिकेट, काटा पीटी नहीं मचानी है हमारे फॉर्मेट में, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव क्लियर्ड फ्रॉम माय साइड, मेरी अगली मीटिंग भी है। आप एक बात ध्यान रखिए, अभी आप हमें अपने टाइटल्स भेजिए, ठीक है, फिर
हम आपके टाइटल्स पे डिस्कस करेंगे, आपको मेल भेजेंगे कि कौन से एक्सेप्टेड है, कौन से नहीं है एक्सेप्टेड। और ये सब बात जो आप बड़ा बड़ा चैट यहाँ भेज रहे हो, वो आप उसी टाइटल में लिखिए आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप जिनको गाइडेंस चाहिए आप अपने सेंटर से बात कीजिए। सेंटर अगर आपको किसी वजह से गाइड नहीं कर पा रहे हैं या कोई इशू आ रहा है, तो हम दोबारा आपकी क्लास अरेंज करेंगे जिसमें हम प्रॉपर गाइड करेंगे आपको कि क्या करना है प्रोजेक्ट में और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें इश्यूज हैं, ठीक है, आपको क्लास की जरूरत है, तो मैं दोबारा से गूगल फॉर्म भेजूंगी। उसमें आप जो बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें जरूरत है क्लास की, हम आएंगे क्लास में, तो ही हम उनके लिए फिर प्रोजेक्ट वाली क्लास कराएंगे। रेस्ट आप उससे पहले जो LMS पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, डली हुई हैं, 6 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वाले टाइटल में जाइए, सब्जेक्ट में जाइए, वहां पर कुछ वीडियोस हैं। आप पहले उन वीडियोस को अच्छे से थॉरोली चेक कर लीजिए, देख लीजिए। मेरे ख्याल से उसके बाद आपके क्वेश्चंस काफी सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपके if you still have problem, then definitely we will share with you. First of all, those who are from the South India and are not able to understand Hindi, please try and listen me that you have to understand, you have to fill the Google form. Number 1, we will share the result of your project title to your center. Please contact your study center, then industry partner. Secondly, those who are not getting help from anyone and they need our help to make the project, just send us a mail that you want a class, then we will arrange a class again. Okay. Now all the paramedical student can leave the meeting and only the multimedia student remain here in the meeting. Thank you very